What are the types of register? Anyone? Shift register. Yes. बफर, शिफ्ट, बायडायरेक्शनल एंड यूनिवर्सल. उसमें से बायडायरेक्शनल एंड यूनिवर्सल टू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, नॉर्मली आस्क in GT for 7 marks. Okay, bidirectional and universal shift register. Okay, but most important आपको उसका डायग्राम याद रखना पड़ेगा, तभी आप उसमें कुछ लिख सकते हैं. ठीक है. Okay, application of shift register. It's temporary data storage, data transfer, data manipulation, and as a counter. Why it is work as a counter? Because I think already explained in previous lecture. If we have to count from 0 to 7 means total 8 bit मुझे count करना है. So 2 raised to 3 means we have to require 3 flip flops. But if I count from like 0 to 10, so we have to require the 4 flip flops. Means 4 flip flop means it is a 4 bit register, and ultimately आगे जो मैंने बोला it is a 3 bit register. So ultimately this use of this register, it is always in counter to counting up down up and down, वो combine भी हो सकता है. ठीक है. So counter is, it is a register that go through a prescribed sequence of distant state. Upon the application of sequence of input pulses, it called the counter. Means like it is not a continuous sequence like 0 1 2 3 4 5 6 7, but maybe it is like prescribed sequence कि 0 4 8 9 randomly, वो sequence को भी वो follow करना चाहिए. That's why यहाँ पे mention किया हुआ है कि register that goes through a prescribed sequence. Okay, the input pulses could be a clock or some other inputs that occurs when next step in the count should be occur. Counter that follows the binary number sequence is called the binary numbers. Okay, generally it is divided into two categories: asynchronous ripple counter and synchronous ripple counter. Okay, it is divided into asynchronous. Asynchronous it is also called as the ripple. That's why और करके mention किया हुआ है. Asynchronous or ripple counter. And next one, it is a synchronous counter. Now what is the difference between two? I think I have already explained in a previous lecture. If it is a synchronous counter, then we have to provide the clock pulse to each and every flip flop in your counter. But if it is asynchronous, then we just consider clock pulse given to the first flip flop. After that, output of first use as a clock of second, and output of second consider as clock of third. So it is asynchronous. Okay, because we are not providing clock pulse in a synchronous manner. If we are providing clock pulse at the same time at each and every flip flop, then it is called as a synchronous counter. Okay, so there is a main two types of counter: asynchronous or ripple counter, and second is synchronous counter. आई थिंक हमारा डिफरेंस भी हो गया था ना. आई थिंक यहाँ से बाकी था डायरेक्टली. कोई बात नहीं, वापस एक्सप्लेन कर दे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, asynchronous एंड synchronous? ठीक है, तो ऑलरेडी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पे मैं मेंशन की हुई है कि asynchronous काउंटर में क्या होता है. इन दिस टाइप ऑफ काउंटर, काउंटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द आउटपुट ऑफ फर्स्ट FF ड्राइव द क्लॉक फॉर द सेकंड. ओके, एंड आउटपुट ऑफ सेकंड कंसीडर्स द क्लॉक ऑफ थर्ड. Okay, and synchronous में क्या होगा? In this type of counter, there is a no connection between the output of first FF and clock input of the next FF, and so. Okay, क्यों कनेक्शन नहीं है? Because each and every flip flop को हम clock pulse दे रहे हैं, एक दूसरे पे वो dependent नहीं है. That's why all the flip flops in our synchronous counter, all the flip flops are not clocked simultaneously, which I already told, and all the flip flops are clocked simultaneously. Of course, design and implementation is very simple even for more numbers of state, क्योंकि individual clock pulse नहीं देना. That's why design implementation उसका क्या होगा, like simple होगा, and design implementation becomes very tedious and complex as the number of state increases. State का meaning क्या है?
कि लाइक मुझे 0 to 5 काउंट करना है, 0 to 10 काउंट करना है, तो डिफरेंस होता है ना, उसमें कम काउंट करना है। 0 to 10 में ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टेट आ जाएंगे। 10 to 15 काउंट, लाइक 0 to 20 काउंट करना है तो मोर नंबर्स ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे। तो जितने आपके स्टेट्स इंक्रीज होंगे, स्टेट मीन्स यू कैन कंसिडर अ प्रेजेंट एंड नेक्स्ट स्टेट ऑल्सो। तो जितने आप नंबर्स ऑफ काउंटर की जो लाइक लिमिट है कि 0 to 20 और 0 to 10 वो इंक्रीज करेंगे, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इन सिंक्रोनस काउंटर इट इज ऑल्सो इंक्रीज, बट इन असिंक्रोनस काउंटर ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस काउंटर असिंक्रोनस का क्या ड्रॉबैक है, उसकी स्पीड लो होगी। वाई? क्योंकि क्लॉक पल्स सबको साथ में नहीं दे रहे, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स द मोर टाइम कंपेयर टू synchronous counter. But if you consider synchronous counter, so clock is applied to all the flip-flops simultaneously. So the propagation delay is equal to a one of the flip-flop. Hence they are faster. Propagation delay सिर्फ कितना होगा, एक flip-flop को आप जितना लाइक पास करेंगे उतना ही उसका क्या होगा, प्रोपोगेशन डिले रहेगा। एक पर्टिकुलर फ्लिप-फ्लॉप से पास होने में कितना टाइम लगता है उतना ही होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इट इज ए असिंक्रोनियस काउंटर। 1 minute। ओके, सो asynchronous रिपल काउंटर। सो ओके, asynchronous का मीनिंग क्या बोला है आपको, क्लॉक पल्स सिर्फ फर्स्ट को ही देनी है, सेकंड को देखो मैंने क्लॉक पल्स कैसे दिया हुआ है, आउटपुट ऑफ फर्स्ट कंसिडर एज ए क्लॉक ऑफ द सेकंड। ओके, दोनों को इनपुट तो मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे लॉजिक 1 दिया है, यहाँ पे लॉजिक 1 दिया है। इट इज ए 2 bit asynchronous रिपल काउंटर आपको दिया हुआ है, 2 bits है, दैट्स व्हाई इट कंसिस्ट ऑफ 2 numbers of flip-flop, or you can consider it is a 2 bit register also. ओके, सो फर्स्ट फ्लिप-फ्लॉप को आपको क्लॉक पल्स देना है, बट सेकंड को नहीं देना है। सेकंड को क्या क्लॉक पल्स होगा, फर्स्ट का आउटपुट और सेकंड का क्लॉक पल्स होगा। उसका मीनिंग क्या है कि जब तक ये रिएक्ट नहीं करेगी तब तक इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसका आउटपुट कुछ आएगा, देन एंड देन उसको क्लॉक पल्स मिलेगा, उसके बाद बी फ्लिप-फ्लॉप एक्टिव होगी, तब तक बी फ्लिप-फ्लॉप एक्टिव नहीं होने वाली। जब तक ये एक्टिव नहीं होगी ये भी एक्टिव नहीं होगा। ओके, सो आपको यहाँ पे स्टेट दी है कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, मैंने वैसे पूरा फ्लिप-फ्लॉप का डायग्राम यहीं पे ले लिया है, तो आपके लिए वो इजी रहेगा, सॉरी काउंटर का। यहाँ पे देखो इनिशियली QA एंड QB, यहाँ पे QA है ओके, और ये QB है। ठीक है, QA एंड QB बोथ आर 0 स्टार्टिंग में, तो उसका स्टेट नंबर कुछ भी नहीं होगा, इट इज 0। ओके, डेसिमल काउंटर आउटपुट क्या होगा, 0, मतलब जो भी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है उसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रही हूँ तो वो वैल्यू क्या आएगी वो यहाँ पे मेंशन करना। ठीक है, और इट इज सिंपली रिप्रेजेंट द स्टेट नंबर के फर्स्ट स्टेट मिला, उसके बाद सेकंड स्टेट मिला, उसके बाद थर्ड मिला, उसके बाद फोर्थ मिला। ओके, नाउ इट इज सिंपल यू कैन कंसिडर अ नेगेटिव, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, मतलब फर्स्ट नेगेटिव एज, इट इज ए नेगेटिव एज ट्रिगर रिपल काउंटर। ओके, तो फर्स्ट नेगेटिव एज जैसे इसको मिलेगी, यहाँ पे 1 तो दिया हुआ है, फर्स्ट नेगेटिव एज इसको मिलेगी। ठीक है, सो Q इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे T। सो कौन सा ये टोगल, मतलब इसको जैसे ही आप इनपुट देंगे ना, जो भी आउटपुट है उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ टोगल फ्लिप-फ्लॉप, T फ्लिप-फ्लॉप। इसको 1 मिलता है तभी आपका Q चेंज होगा, मतलब 0 होता 1 होगा और 1 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे मैंने इसको 1 दिया, Q मेरा स्टार्टिंग में क्या था, QA, मोस्ट इंपोर्टेंट QA क्या था, 0, वो क्या हो जाएगा 1। ओके, ये क्या था 0, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1। कब होगा वो, फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव एज पे, फर्स्ट नेगेटिव एज में फ्लिप-फ्लॉप वर्क करेगी, इसको 1 मिलेगा, Q फर्स्ट 0 था, बट आफ्टर गिविंग 1 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 0 टू क्या होगा 1। ओके, नाउ एट दैट टाइम कि जब आप इसको क्लॉक पल्स दे रहे हैं, इस पे कोई इफेक्ट होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका आउटपुट क्या था 0 था। आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट एज इसको आउटपुट मिलेगा, मतलब इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा और वो कहाँ पे देंगे, बी फ्लिप-फ्लॉप में। बट एट अ फर्स्ट पॉजिटिव एज बी फ्लिप-फ्लॉप इज डिसेबल, मतलब QB क्या होगा, नो चेंज, एज इट इज आएगा।
ओके क्या आएगा वो एज इट इज आएगा। ओके नेक्स्ट क्या होगा ड्यूरिंग सेकंड पॉजिटिव एज सॉरी नेगेटिव एज ड्यूरिंग सेकंड नेगेटिव एज क्या होगा नाउ यहाँ पे क्या आ चुका है 1 तो ये 1 कहाँ पे जाएगा यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा इसको फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या था वो 0 उसकी जगह पे 1 हो जाएगा बट नाउ अब क्या होगा 1 था यहाँ पे ठीक है अगर मैं QA वो मेरा ऑलरेडी 1 था दैट्स वाई ये एक्टिव हो चुकी है नाउ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 to 1 एंड व्हाट अबाउट QA में क्या होगा वापस इसको 1 मिलेगा तो अगर 1 था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 0 1 का 0 होगा 0 का 1 होगा ठीक है आगे के स्टेज में QA अगर 1 है तभी QB क्या होता है 1 होता है नेक्स्ट स्टेज में वो याद रखना ठीक है नाउ थर्ड में क्या होगा चलो थर्ड का मुझे कौन बताएगा ये 1 कहाँ से आया चलो कौन बताएगा ये 1 कहाँ से आया हेलो हाँ बोलो जो थर्ड स्टेज है 0 था पर उसका कॉम्प्लीमेंट होके 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा ओके एंड ये क्यों 1 का 1 ही रहा QB क्यों एज इट इज रहा देखो फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेज में क्या है दोनों में 0 ठीक है ये बबल का मीनिंग क्या है नेगेटिव एज मतलब यहाँ पे क्या पहुंचना चाहिए 0 तभी ये वर्क करेगी यहाँ पे 0 है स्टार्टिंग में क्या है 0 क्या है यहाँ पे 0 तो 0 का यहाँ पे क्या होगा 1 तो वर्क नहीं करेगी 1 मतलब पॉजिटिव एज पे वो वर्क करती है नहीं सिर्फ कहाँ पे वर्क करती है नेगेटिव एज पे इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे क्या आना नेसेसरी है 1 यहाँ पे 1 आएगा देन एंड देन ये 0 होगा और ये एक्टिव होगा ठीक है तो स्टार्टिंग में दोनों 0 है फिर फर्स्ट एज पे ये एक्टिव होगा ये जिसको ऐसे इसको 1 दिया नेगेटिव एज आई कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा 0 का 1 बट वो साइमल्टेनियसली होता है दोनों को हम 1 दे रहे मतलब इसका तो होगा बट प्रीवियस QA की वैल्यू क्या थी 0 तो उसका क्या आ रहा था 1 मतलब ये डिसेबल रहेगा जब तक इसको 0 नहीं मिलता तब तक वो एक्टिव नहीं होता डिसेबल मतलब एज इट इज 0 नेक्स्ट क्या होगा वापस नेगेटिव एज आएगी तो इसका 0 का 1 हुआ था 1 का 0 हो जाएगा ओके बट प्रीवियस इसकी वैल्यू क्या थी QA की 1 थी 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 सो नाउ एक्टिव होगी वो क्या करेगी अपनी 0 का 1 सो नाउ इट इज 0 का 1 ठीक है नाउ अब क्या होगा वापस कौन सी एज आई नाउ थर्ड पॉजिटिव नेगेटिव एज थर्ड नेगेटिव एज पे इसका याद रखना QA क्या था 0 का यहाँ पे क्या गया 1 मतलब अभी थर्ड स्टेज में एक्टिव नहीं होगी सिर्फ कौन सी एक्टिव होगी ओनली ए मतलब थर्ड स्टेज में B की वैल्यू QB की वैल्यू एज इट इज रहेगी इसको अगर हम नॉर्मली 1 दे रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव एज आएगी तो स्टार्टिंग में 0 होगा फर्स्ट 0 था आगे का स्टेज तो क्या हो जाएगा 1 नाउ नेक्स्ट फोर्थ पे क्या होगा यहाँ पे नाउ QA क्या हो चुका है 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 मतलब इसको नेगेटिव एज मिलेगी नेगेटिव एज मतलब ये वर्क करेगा सो नेक्स्ट में ये वर्क करेगा मीन्स 1 का क्या हो जाएगा 0 और यहाँ भी क्या होगा जैसे ही नेगेटिव एज मिलेगी ठीक है यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ 1 मतलब टोगल तो QA क्या था आगे 1 तो उसका क्या हो जाएगा 0 तो जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था 0 वापस वहाँ पे पहुँच गए और कितना काउंट किया उसने 0 1 का डेसिमल क्या होता है 1 0 का 2 1 का 3 एंड 0 का अगेन 4 तो कितना काउंट किया इसने 0 1 2 and 3 and ultimately if you check so it found the fourth state है ना अल्टीमेटली यहाँ पे 5 वैल्यू आ रही है बट स्टेट कितने हुए 4 कौन सा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 क्योंकि 0 0 तो वापस रिपीट हुआ है तो स्टेट 4 है डेसिमल वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है
तो ये काउंटर कितना काउंट करेगा, 0 to 3 तक ही काउंट करेगा, 0 1 2 3। एंड ऑफ कोर्स इट इज ए 2 बिट मीन्स 2 मीन्स 4, तो वो 4 वैल्यू को ही काउंट कर सकता है। किसी को डाउट है इसमें बताइए, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ कैसे ट्रांजिशन हुआ। हेलो हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम जो सेकंड है हाँ उसमें हमें कब मिलेगा, तो ही क्यों वो समझ नहीं यार क्या बोल एक्टिव रहे होगा? हैं। लाइक जो इसका इनपुट है उसका आउटपुट क्लॉक हाँ पल्स का हाँ आउटपुट होगा, हाँ हाँ तो उसका 1 हो तो ही वो एक्टिव इसीलिए होगा। इसीलिए क्योंकि 1 यहाँ पे बबल दिया हुआ है, 1 का बबल मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट 1 का करेंगे तो 0, और ये आपको कौन सी एज दी है, नेगेटिव एज। इसका मीनिंग क्या है, 1 to 0 मतलब 0 पे ही एक्टिव होगी वो। तो यहाँ पे 1 होगा तो कॉम्प्लीमेंट होकर यहाँ पे 0 पहुंचेगा, दैट्स वाई नेगेटिव एज, और वो एक्टिव होगा। ओके ओके मैम। ओके, सेम उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। डायग्राम क्या होगा यहाँ पे देखो, सिंपली नेगेटिव एज पे आपका स्टेट क्या था, फर्स्ट एज। तो फर्स्ट एज में क्या है 0 1, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या है, क्यू ए की वैल्यू 1 है एंड बी की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या हुई 0, एंड इट इज कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट नेगेटिव एज। नेक्स्ट नेगेटिव एज पे क्या वैल्यू हुई क्यू ए की 0, एंड सेकंड पे बी की वैल्यू क्या हुई 1, सो इट इज कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट, तो यहाँ पे कंटिन्यू हुआ। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में दोनों की वैल्यू 1 1 है, इट इज कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट पॉजिटिव एज, वापस दोनों की वैल्यू क्या हो गई 0, कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट नेगेटिव एज। ओके, ये टेबल को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, क्यू एन क्यू बी। एनी डाउट इन दिस, एनीवन एल्स, किसी को डाउट है तो बताइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसके बेसिस पे मैंने आपको सिर्फ 2 बिट का बताया, आपको सिंपली 2 बिट का ड्रॉ नहीं करना है, आपको नॉर्मली 4 बिट का ड्रॉ करना है, बट इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 2 बिट का रिप्रेजेंट किया हुआ है। 2 बिट का भी हो सकता है, 3 बिट का भी हो सकता है। आपको सिंपल ऐसा बोला है कि एक्सप्लेन सिंक्रोनस और रिपल काउंटर, सो आप 2 बिट का इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ उतना देखना है कि ये फ्लिप फ्लॉप कब एक्टिव हो रही है, क्रॉस में देखना है। जब क्यू ए 1 हो ना तब नेक्स्ट स्टेट में ये एक्टिव होगी। यहाँ पे देखो 1 हुआ तो इसका चेंज हुआ, 0 है तो एज इट इज है, वापस 1 हुआ तो ये चेंज हुआ। ओके, उस तरह से अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उस तरह से भी याद रख सकते हैं, बट अल्टीमेटली बी फ्लिप फ्लॉप सिर्फ तभी वर्क करेगी जब यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आता है तो 1 का क्या होगा 0, एंड 0 मीन्स नेगेटिव एज, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बबल दिया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। ओके, ओके, अब स्टेट सारे आपको लिखने हैं, मुझे बताना क्या आएगा, ठीक है। अब मैंने कौन सा बनाया हुआ है नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके, रिपल अप काउंटर। ओके, ये आगे वाला कौन सा काउंटर था, अप या डाउन? डाउन। डाउन क्यों है, वैल्यू तो अप हो रही है ना, 0 1 2 3, सो इट इज अप काउंटर। अगर स्टार्टिंग में 3 है उसके बाद 3 2 1 0 आ रहा है, देन इट इज अ डाउन काउंटर। वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0 1 2 3 मींस इट इज ए अप काउंटर, सो यू कैन डिजाइन अप एज वेल एज डाउन काउंटर आल्सो। नाउ अगेन इट इज ए अप काउंटर। देखो क्या है इसमें, जेके का यूज करके बनाया हुआ है, बट जेके एंड टोगल उसमें कब कॉम्प्लीमेंट होता है, जेके में कॉम्प्लीमेंट कब होता है, ऐसे टोगल कब वर्क करता है वो जेके, फॉर विच कॉम्बिनेशन? 1 1। 1 1, दैट्स व्हाई जे एंड के दोनों को क्या दिया हुआ है 1 1 1 होगा तभी जो भी आउटपुट होगा उसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा, एंड नेक्स्ट का आउटपुट क्यू वापस इसका क्या होगा क्लॉक पल्स, एंड मेक श्योर यहाँ भी नेगेटिव एज है, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा 0 0, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा 0 एंड 0। ओके, नेक्स्ट स्टेट में क्या आएगा, चलो कौन बताएगा मुझे, नेक्स्ट स्टेट में
जैसे ही हम इसको क्लॉक पल्स दे रहे हैं अभी नेगेटिव एज, एंड मेक श्योर ये पॉजिटिव अगर आपको एरो दिया हुआ है तो फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगी, मीन्स नो चेंज, जीरो का जीरो ही मेंशन करना है स्टार्टिंग में, और यू कैन कंसीडर एज डोंट केयर ऑल्सो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव एज, सॉरी फर्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव जैसे इसको 1 1 मिलेगा, जीरो का क्या हो जाएगा 1, मतलब कौन सा 1 हो रहा है, Q1। बट व्हाट अबाउट दैट, एट दैट टाइम क्या था, Q1 0, तो जीरो का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो वर्क करेगा नहीं करेगा, सो यहाँ पे क्या आएगा एज इट इज 0। नाउ नेक्स्ट सेकंड नेगेटिव एज, सेकंड नेगेटिव एज पे अगेन यहाँ पे 1 1 मिल रहा है, मतलब ये तो क्या होगा 1 का 0। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या हुआ था पहले, Q1 क्या था स्टार्टिंग में, प्रीवियस Q1 क्या है 1, ठीक है, सो 1 का क्या होगा 0, मतलब ये अब वर्क करेगा नेगेटिव एज, दैट्स वाई 1 to 0 हो रहा है, मीन्स नेगेटिव एज, तो वर्क करता है, वर्क करेगा मतलब 0 का क्या हो जाएगा 1। ओके, आपको साइमल्टेनियसली दोनों स्टेप लिखने हैं। ओके, कि जैसे ही मैं इसको क्लॉक पल्स दे रही हूँ, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू के लिए वेट नहीं करना है कि वो नेक्स्ट में जाएगी उसके बाद लिखूं, कि वो नेक्स्ट स्टेट में जाती है। अगर आप क्लॉक पल्स दे रहे हैं तो दोनों की वैल्यू साथ में ही लिखनी है यहाँ पे। ओके, मतलब Q1 की वैल्यू प्रीवियस जो थी वो कंसिडर करनी है। ओके, नाउ फर्स्ट सेकंड हो गया, नाउ थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज पे क्या होगा, जैसे ही इसको हम 1 1 देंगे, ये 0 का क्या हो जाएगा 1, एंड व्हाट अबाउट दैट, यहाँ पे 0 था Q1, 0 का 1 होगा तो वर्क करेगा नहीं, वो 0 पे ही सिर्फ वर्क करता है बिकॉज नेगेटिव एज है, तो एज इट इज रहेगा 1। सेम यहाँ पे क्लॉक पल्स देंगे, 1 1 आ रहा है, मतलब टॉगल कंडीशन, आउटपुट क्या होगा, प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट, प्रीवियस क्या था 1, तो यहाँ पे क्या था होगा 0। नाउ प्रीवियस क्या था यहाँ पे 1, तो 1 का क्या हुआ 0, मीन्स नेगेटिव एज, नाउ दिस फ्लिप फ्लॉप इज अनेबल, इनपुट में क्या जा रहा है 1 1, तो टॉगल करेगा, मीन्स 1 का क्या होगा 0। नाउ क्लियर, मैम एक बार रिपीट कराओ। ओके ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है 0 0 इनिशियली, दोनों की वैल्यू क्या है 0 0। ओके, नाउ पॉजिटिव एज पे वो वर्क करेगा नहीं, दोनों में से कोई भी फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज पे वर्क करेगी नहीं। आप चाहे तो यहाँ पे पॉजिटिव एरो दिखा के 0 0 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट नेगेटिव एज, यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव एज आएगी, तो दोनों की वैल्यू क्या थी 0 0, तो यहाँ पे जैसे ही 1 1 गया, सो वो क्या करता है टोगल, मतलब प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट, तो प्रीवियस Q1 की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ओके, बट एट दैट मोमेंट दोनों को साथ में कंसीडर करना है, Q1 की वैल्यू के लिए वेट नहीं करना है मुझे, इसका क्या आ रहा है Q1 इज इक्वल टू 0 का 1 हुआ, एंड Q2 में क्या कंसीडर करना है, Q1 प्रीवियस क्या था, तो कि 0, 0 का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1, बबल है मीन्स कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का क्या होगा 1 1 हो रहा है, मीन्स इट इज ए डिसेबल, वो सिर्फ 1 to 0 पे ही वर्क करती है, नेगेटिव एज है दैट्स व्हाई, तो डिसेबल मतलब नो चेंज, वो वर्क ही नहीं करेगा, तो 0 का 0 एज इट इज रहेगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड नेगेटिव एज, जैसे ही सेकंड नेगेटिव एज आएगी अगेन ये तो वर्क करेगा ही, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, कॉम्प्लीमेंट होगा क्योंकि 1 1 कंडीशन है जेके की यहाँ पे, दैट्स व्हाई 0 का क्या 1 का क्या होगा यहाँ पे 0। ओके, नाउ प्रीवियस Q1 की वैल्यू क्या थी 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, मतलब ये वर्क करेगा, अगर ये वर्क करेगा तो इनपुट में क्या जा रहा है 1 1, तो 1 1 का मतलब क्या टोगल, मतलब प्रीवियस जो भी आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट, सो यहाँ पे क्या होगा 0 का 1। नाउ नेक्स्ट वापस थर्ड नेगेटिव एज, 0 का तो 1 ही हो जाएगा, बट Q1 प्रीवियस क्या था 0, तो 0 का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होकर क्या होता है 1, बबल मीन्स कॉम्प्लीमेंट करना है, तो 0 का 1 मीन्स पॉजिटिव एज पे वो वर्क नहीं करता है, दैट्स व्हाई एज इट इज, तो 1 का 1 रहेगा। नाउ नेक्स्ट पे अगेन ये तो 1 का 0 होगा, प्रीवियसली इसकी वैल्यू क्या थी 1, 1 का मीनिंग क्या है 1 2, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 का 0, 0 मतलब नेगेटिव एज, तो ये वर्क करेगी मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट करेगी 1 का 0। सो कितने स्टेट आए 0 1 2 3 4। ओके, एंड डेसिमल वैल्यू भी क्या होगी 0 1 2 3 एंड अगेन 0, सो इट इज काउंट फ्रॉम 0 to 3, it is up count using negative age trigger JK flip flop. Any doubt in this? नो मैम। Okay. Okay, now it is the down counter. क्या डिफरेंस है इसमें, कौन मुझे बताएगा, चलो
इसके वेवफॉर्म भी ड्रॉ कर लेना जिसमें मैंने आपको बताया थे। फर्स्ट नेगेटिव एज पे क्या वैल्यू है 0 एंड 1, कौन सा 1 है Q1, कौन सा 0 है Q2, इट इज कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट नेगेटिव एज। नेक्स्ट नेगेटिव एज पे Q1 की वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू क्या है 1, इट इज कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट नेगेटिव एज। नेक्स्ट नेगेटिव एज पे मतलब थर्ड पे Q1 की वैल्यू क्या है 1, Q2 की वैल्यू भी क्या है 1, इट इज कंटिन्यू अप टू नेक्स्ट नेगेटिव एज। वापस दोनों की वैल्यू क्या हुई 0 एंड 0। ओके, डाउन काउंटर में क्या चेंज है सर्किट में? उसका Q1 डैश का आउटपुट यस, बाकी सब सेम है। सिंपली क्या किया है यहाँ पे Q1 डैश का आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ। अब तक क्या कर रहे थे Q1 का आउटपुट यहाँ पे दे रहे थे। ओके, तो क्या होगा, चलो फर्स्ट स्टेज क्या आएगा कौन मुझे बताएगा? 0 0 डाउन काउंटर है तो वहीं से तो थोड़ा आइडिया लगाइए। 1 1 एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट यहाँ पे हम नेगेटिव एज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दोनों की वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ भी क्या होगी 0। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट में क्या होगा फर्स्ट नेगेटिव एज। फर्स्ट नेगेटिव एज पे क्या होगा, यहाँ पे देखो Q1 एंड Q2 की वैल्यू क्या क्या रिफ्लेक्ट होगा। Q1 क्या होगा वो तो हमें पता ही है 0 का 1, ठीक है, ये 1 हो रहा है। ओके, अब इसके लिए क्या देखेंगे प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू Q1 की क्या थी 0, मतलब ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 1, सो 1 का क्या होगा यहाँ पे 0। एक्चुअली हम आउटपुट यहाँ पे कौन सा दे रहे हैं, ये आपका Q1 है और ये क्या है Q1 डैश है, ठीक है। सो Q1 डैश है यहाँ पे, सो उसके लिए हमें लाइक Q1 की वैसे भी वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या जाएगा 1, 1 का 0, सो ये भी अनेबल होगा। ये अनेबल होगा तो क्या करेगा 0 का 1। क्लियर? देखो ये 0 0 था स्टार्टिंग। अब Q1 की वैल्यू क्या, सॉरी, जैसे ही मैं इसको नेगेटिव एज दे रही हूँ यहाँ पे 1 1 है तो टोगल करता है, मतलब 0 का 1। अब Q1 की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, हम प्रीवियस ही देखते हैं ना, क्योंकि अभी आगे का तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं एट द मोमेंट दोनों का आउटपुट देखना है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पास होने में टाइम लगता है, वो सेकंड नेगेटिव एज में होता है। फर्स्ट नेगेटिव एज में दोनों इंडिविजुअली देखना है आपको, ठीक है। सो इसका क्या आएगा, Q1 क्या था पहले प्रीवियस वैल्यू 0, 0 का क्या हुआ यहाँ पे 1 1, लेकिन यहाँ पे बबल है, सो 1 का कॉम्प्लीमेंट मीन 0, तो इसको 0 दे रहे हैं, मीन्स इट इज ए नेगेटिव एज। तो नेगेटिव एज पे तो ये भी वर्क करता है, तो अगेन वो भी कॉम्प्लीमेंट करेगा 0 का 1, दैट्स व्हाई मुझे थर्ड स्टेट डायरेक्टली मिलेगा, इट इज ए डेसिमल 3। ओके, एनी डाउट इन दिस? हेलो, ओके मैम। डाउट है तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्या होगा, चलो जैसे इसको मिलेगा सेकंड नेगेटिव एज, ये तो वर्क करेगा ही, क्या होगा 1 का 0। नाउ व्हाट अबाउट दैट, यहाँ पे क्या था Q1 में 1 था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, 1 का 0। अब 0 का मैं यहाँ पे दे रही, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, इसको 1 मिल रहा है, तो ये अनेबल होगा या डिसेबल रहेगा, इसको अगर 1 दे रहे हैं तो डिसेबल रहेगा ना? डिसेबल मीन्स एज इट इज 1 0। सो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है 3 और ये 2, सो डाउन काउंटिंग हो रहा है मतलब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसका तो आपको आंख बंद करके लिख ही देना है, 0 होता तो नेक्स्ट में क्या होगा 1, इसका ही है जो भी है वो 1 हुआ। यहाँ पे Q1 में क्या मिला 1, बट प्रीवियस Q1 क्या था जिसपे ये डिपेंडेंट है, प्रीवियस Q1 था 0, तो ये 0 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, 0 मतलब ये वर्क करेगा, यस। सो 1 का क्या होगा नाउ 0। ओके, नाउ अब क्या होगा, अब ये तो वर्क करेगा ही, फोर्थ पे 1 का 0। नाउ व्हाट अबाउट दैट, इसका क्या होगा, प्रीवियस Q1 की वैल्यू क्या थी 1, इसका कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 मतलब ये वर्क करेगी नहीं करेगी, सो एज इट इज। सो इसने डाउन काउंटिंग किया, देखो 3 2 1 एंड 0, सो इट इज ए 2
bit down counter using negative age trigger JK flip flop. Clear or any doubt in this? हेलो क्लियर मैम। ओके बाकी किसी को डाउट है तो बताइए। हाँ बहुत इजी है बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप इजी लिख सकते हैं। इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इवन आप सिंपली आपको ये याद है कैसे बनाना है तो आप टेबल भी बना सकते हैं, उसके वेवफॉर्म भी आप टेबल में से बना सकते हैं। कुछ भी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी को डाउट है तो मुझे बताना, मैं रिपीट करवाती हूँ। ठीक है डाउट है किसी को? हेलो anyone else? Okay. Okay, now again it is a up counter. पॉजिटिव एज ट्रिगर हम आई थिंक नहीं। ओके पॉजिटिव एज है ना, समझ आया क्या है यहाँ पे? नेगेटिव एज नहीं है, देखो यहाँ पे बबल नहीं है। कौन सा है? नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज काउंट फ्लिप फ्लॉप्स है। यू कैन कंसीडर लाइक यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हमें अप काउंटर है वो डिजाइन करना है। ठीक है सो स्टार्टिंग में क्या रहेगा? 0 एंड 0 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। आगे क्या था? Q1 Q2 था सीक्वेंस। ओके Q2 Q1 से यहाँ पे क्या आएगा? Q2 एंड Q1। ओके ओके नाउ फर्स्ट पॉजिटिव एज। नाउ देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव एज, फर्स्ट पॉजिटिव एज इसको मिलेगी मतलब ये वर्क करेगा। सो 0 का क्या होगा? 1 एंड यहाँ पे 1 तो यहाँ पे क्या हुआ? 0। इसको भी 0 दे रहे हैं। ओके 1 मिनट। यहाँ पे क्या मुझे मिला? मुझे 1 तो 1 का यहाँ पे क्या होगा? 0 तो 0 पे वो वर्क नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी मतलब एज इट इज रहेगा। सो इट इज 0। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में है 0 0, उसके बाद अब नेगेटिव एज का भूल चाहिए आगे जो हमने किया था। नाउ पॉजिटिव एज। ठीक है पॉजिटिव एज में यहाँ पे देखो क्या सिर्फ बबल नहीं है, बाकी सब सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। डाउन काउंटर में हमने Q1 डैश दिया हुआ था, यहाँ पे अप काउंटर में भी Q1 डैश दिया हुआ है एज ए क्लॉक पल्स। ठीक है क्या देना है ना वो भी आपको आइडिया आ जाता है अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे मुझे करना है। बाई चांस में अगर Q1 यहाँ पे देती तो क्या होता? Q1 की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है तो अगर मैं 0 यहाँ पे दे देती हूँ डायरेक्टली, ठीक है Q1 एक मिनट, यहाँ पे क्या मिला था? सॉरी 0 ही था, यहाँ पे क्या हुआ? 0 का 1। अगर मैं 1 दे रही हूँ तो वर्क होना चाहिए मतलब यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए, इसको है ना डाउन कर देना क्योंकि मिस्टेक है आई थिंक। आपको करेंगे फिर भी आपको पता चल जाएगा। डाउन काउंटर कैसे वो बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक पल्स दी थी तो 0 का क्या हुआ? 1। अब मुझे तो प्रीवियस देखना है, प्रीवियस 0 था तो यहाँ पे क्या मिला मुझे? 1। तो 1 पे वो वर्क करनी चाहिए क्योंकि पॉजिटिव क्लॉक पल्स है, दैट्स व्हाई। अगर वो 1 पे वर्क करेगी मतलब 0 का क्या हो जाएगा? 1। सो थर्ड फर्स्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 2 1 0। सो इट इज डाउन काउंटर। लेकिन अगर मुझे अप काउंटर करना होता तो Q1 को मैं यहाँ पे दे देती। ओके डाउन काउंटर है तो Q1 डैश को यहाँ पे Q1 देना का है। आउटपुट दे देना है। हाँ एंड अगर अप काउंटर है तो Q1 का मुझे यहाँ पे देना है। किसका कहाँ पे देना है ना वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आपको पता चल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई थी, मैंने अप काउंटर लिखा हुआ था बट ये डाउन काउंटर। ठीक है क्योंकि मैंने Q1 डैश को कनेक्ट किया हुआ है, दैट्स व्हाई। ओके नाउ नेक्स्ट क्या आएगा? अगेन 1 का 0। ठीक है प्रीवियसली इसकी वैल्यू क्या थी? 1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 एक्टिव होगा नहीं होगा? मीन्स एज इट इज 1। नेक्स्ट अगेन होगा 0 का 1, प्रीवियस क्या था? 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 मतलब ये एक्टिव होगा तो क्या होगा? 1 का 0।
ठीक है। नाउ लास्ट अगेन ये तो 1 का 0 ही होगा, एंड जैसे इसको 1 मिलेगा, ठीक है, प्रीवियसली क्या था 1, उसका हुआ 0, तो ये वर्क करेगा नहीं, सो एज इट इज से डाउन काउंटिंग हो गया, देखो 3 2 1 एंड 0। क्लियर? हेलो, क्लियर? एनीवन एल्स? क्लियर मैम। ओके, ये क्या लिया हुआ है, सिंपली 0 1 0 0 0 1 1 0 1। ओके, ये भी अब काउंटर ही है, 2 बिट सिंक्रोनियस है। ओके, ये सिंक्रोनियस है। आगे जो हमारा था वो कौन सा था, असिंक्रोनियस, दैट्स व्हाई वहां पे रिपल लिखा हुआ, असिंक्रोनियस एंड रिपल बोथ आर सेम। ओके, सिंक्रोनियस का मीनिंग क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें, देखो चलो, असिंक्रोनियस में क्या डिफरेंस था, इसमें क्या डिफरेंस क्या है डायग्राम में? क्लॉक पल्स सबको दिया है। Yes, clock pulse, you have to provide a clock pulse simultaneously to each and every flip flops. Okay, सबको clock pulse यहाँ पे दी हुई है। Then, okay, so एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा ना, वो इम्पोर्टेंट है। सिंपली आपका जो कॉन्सेप्ट है वही याद रखना है आप। ओके, 0 0 स्टार्टिंग में, नाउ इसको क्लॉक पल्स हम दे रहे हैं, दोनों साथ में ही वर्क कर रही है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है वो क्लॉक पल्स, ठीक है। बट यहाँ पे देखो Q0 है ना, इसका Q0 जो भी आएगा उस पर डिपेंड है जेके, बट क्लॉक पल्स डिपेंड नहीं। जेके डिपेंड है आउटपुट पे, बट क्लॉक पल्स डिपेंड नहीं है। तो जैसे यहाँ पे 1 1 मिला, हाई मैंने रखा हुआ, 1 1 मिलेगा तो ये वर्क करेगा, 0 का 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 0 का 1, प्रीवियस वैल्यू इसकी क्या थी 0, तो 0 0 पे जेके का आउटपुट क्या आता है, इफ आई जेके में अगर मैं 0 0 दे रही हूँ तो व्हाट वुड बी माय आउटपुट, नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज का मीनिंग है Q1 एज इट इज आएगा, जब तक Q0 1 नहीं होता है ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 1 का क्या होगा 0, अब प्रीवियस Q0 की वैल्यू क्या थी 1, सो नाउ इट वर्क, ये वर्क करेगा, तो ये 0 का क्या देगा 1, सो नाउ 0 2 1। ओके, क्योंकि जैसे इसको 1 1 मिलेगा वो टोगल करेगा, मतलब प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का क्या हो जाएगा 1। नाउ अगेन 0 का 1, बट Q0 की प्रीवियस वैल्यू क्या थी 0, तो वर्क नहीं करेगा, मीन्स एज इट इज, सो 1 का 1, ये 0 का 1 और ये 1 का 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, 1 का 0, वो तो 1 का 0 ही होगा, प्रीवियस इसकी वैल्यू क्या थी Q0 की 1, इसकी वैल्यू 1 थी, तो ऑफ कोर्स ये वर्क करेगा एज ए टोगल, सो 1 का क्या होगा 0। ओके, इसी दोनों में इस पे क्लॉक पल्स डिपेंड है, इसमें क्या है सेकंड का इनपुट डिपेंड है आउटपुट पे, तो मतलब हमें अल्टीमेटली वेट तो करना ही पड़ेगा फॉर द फर्स्ट। ओके, क्लियर फॉर सिंक्रोनियस? हेलो, यस मैम। ओके, ठीक है। जब तक Q0 में 1 नहीं जाएगा ये वर्क नहीं करेगी, बिकॉज 1 1 होता है तभी वो ऐसे टोगल वर्क करती है। तो स्टार्टिंग में 0 0 था, नेक्स्ट क्या हुआ 0 का 1, तो वो 0 का 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 का 1 तो हुआ, बट Q0 प्रीवियस क्या था 0, तो मतलब ये वर्क नहीं करेगा, मीन्स एज इट इज आएगा 0 का 0। नेक्स्ट में इसका 1 0 होगा, और प्रीवियस वैल्यू क्या होगी नाउ Q0 की 1, तो ये वर्क करेगा, मीन्स 0 का क्या होगा 1। सेम यहाँ पे क्या करना है, 1 का 0, सॉरी हो गया ना, इट इज 0 का 1, प्रीवियस वैल्यू क्या थी 0, तो ये वर्क नहीं करेगा, मीन्स एज इट इज 1 का 1, 1 का 0, प्रीवियस वैल्यू क्या थी Q0 की 1, वो वर्क करेगा, यस 1 1 से टोगल, सो इट इज 1 0, सो इट काउंट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड अगेन 0, सो इट इज ए सिंक्रोनियस 2 बीट अप काउंटर। ओके, सेम आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्लॉक पल्स है उसका। यहाँ पे क्या दिया मैंने, फर्स्ट पॉजिटिव एज, फर्स्ट पॉजिटिव एज पे कैसे वर्क करेगा वे, 1 मिनट, हाँ ये है ना, यहाँ पे मैंने सॉरी ये मैंने डाउन एरो किया, आप उसको अप कर देना। ओके, ये पॉजिटिव एज है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने पेस्ट करने में मिस्टेक किया है, पॉजिटिव एज है। ओके, यहाँ पे
बाकी यहाँ पे तो हमने पॉजिटिव एज का ही कंसिडर करके किया हुआ है। पॉजिटिव एज, सो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट में Q0 1 हो रहा है और ये क्या है Q1 0। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव एज में ये क्या हो जाएगा 0, 1 का 0 और ये क्या हो जाएगा 1। अगेन अप टू नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 एंड लास्ट पॉजिटिव एज में दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, एनी डाउट इन दिस? हेलो, हेलो, डाउट है किसी को? मैम, नो मैम। ओके ओके,